الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء فالق الحب والنوى هو الذی یصورنا فی الارحام کیف یشاء والصلاة والسلام علی محمد المصطفى ومن علینا بنبیہ المجتبى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول معظم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانہ حسنین کریمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں احسان اور اس کا شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن اترنے والی رحمتوں میں سے ہم سب کو اپنا خاص حصہ نصیب فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کچھ حصہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، جو موت کا بھی خالق ہے اور زندگی کا بھی خالق ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ ہم پرکھ سکیں ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ترتیب دیکھیں، الذی خلق الموت، پہلے موت کا ذکر ہے بعد میں زندگی کا ذکر ہے۔ موت کا پہلے تذکرہ ہے، زندگی کی بعد میں بات ہے۔ اور لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن حسن نہیں کہا بلکہ فرمایا احسن عمل تم میں سے کون کرتا ہے۔
ہمارے ہاں اگر کوئی اچھی انڈسٹری ہو، اس میں اچھی چیزیں بنتی ہوں، تو انہوں نے علیحدہ سے بندے رکھے ہوتے ہیں جو پروڈکٹ ان کی بنتی ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ کوالٹی کون سی ہے، لو کوالٹی کون سی ہے، پھر وہ ان چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ دنیا بنائی، تمہیں زندگی دی، اس لیے کہ ہم تمہارے اعمال کی کوالٹی چیک کریں، تمہارے عمل کیسے ہیں، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں بس میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ ہم لوگ تھوڑی سی نیکی کر کے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مکمل ہو گئے ہیں۔ ہمارے محکموں کے اندر بارہا کچھ مہینوں کے بعد باقاعدہ طور پر کورسز کروائے جاتے ہیں، ریفریش کورسز، تاکہ افسران کو، محکمے والوں کو ان کی ذمہ داریوں سے بارے دیگر آگاہ کیا جائے۔ جانتے وہ پہلے بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں دوبارہ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی ترقی کو روک لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ نیکی کر لی ہے تو ہم مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ رب فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے، موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جانچیں گے، ہم پرکھیں گے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ، فقہ کے ماہر حضرت عثمان حیری۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں دن میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ فلاں دن میرے گھر تشریف لائیے گا۔ آپ نے وعدہ کیا، حسب وعدہ جب دن آیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، جا کر دروازے پہ دستک دی، وہ شخص باہر نکلا، جب حضرت کو دروازے پہ دیکھا تو کہنے لگا معذرت، میں نے آپ کو دعوت دی تھی، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے آپ کو دعوت دی ہے، حضرت معاف کیجئے گا، میں تو کوئی انتظام بھی نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا میاں کوئی گل نہیں، بندہ بھلن ہار ہے، بھول جاندہ ہے۔ آپ نے سلام کیا، واپس پلٹ پڑے۔ جب چوک میں پہنچے تو وہ بندہ پیچھے سے دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا حضرت اگر تشریف لے ہی آئے ہو تو آ جاؤ، تھوڑی دیر میرے گھر میں بیٹھو، ہو سکتا ہے کوئی چیز کھانے کی مل جائے، میں آپ کو پیش کر دوں۔ آپ نے پھر بھی غصہ نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو کوئی ایسے کر کے دیکھے، ہم تو حضرت بگڑ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں سٹاف سے لینے کیوں نہیں آئے، آپ نے ہم سے ٹائم لیا تھا اور آپ نے ہمیں رابطہ کیوں نہیں رکھا۔ لیکن وہ کیا حسین لوگ تھے، وہ کیا عظیم لوگ تھے۔ دوسری مرتبہ آپ پھر اس کے گھر جب آ کر بیٹھے تو کہنے لگا حضرت معاف کرنا، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ آپ اٹھے اور پھر چل پڑے۔ جب چوک میں پہنچے تو وہ بندہ پیچھے دوڑتا دوڑتا پھر آ گیا، کہنے لگا حضرت گھر میں تھوڑا سا اچار مل گیا ہے، آپ مہربانی کریں پھر واپس آ جائیں۔ آپ نے ماتھے پہ شکن نہیں ڈالی، غصہ نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ آپ اس کے گھر پھر آ گئے۔ جب اس کے گھر میں آ کے بیٹھے تو کہنے لگا معذرت یہ اچار خراب ہوا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، آپ پھر چلے جائیں۔
तीसरी मर्तबा आप जर्रा बराबर भी माथे पे शिकन नहीं डाली, आप उठ के चलने लगे। जब घर से बाहर निकले तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा माफ करना हजरत, मैं तो आपका सब्र आजमा रहा था, आप तो अखलाक के बड़े आला दर्जे पे फायज हैं, आप तो बड़े कमाल इंसान हैं। कमाल कुर्बान जाऊं, आपने जो जवाब दिया, आपने फरमाया मियाँ बस चुप कर, मेरा अखलाक कौन सा अखलाक है? फरमाया ये अखलाक तो मेरे शहर के कुत्तों में भी पाया जाता है। फरमाया ये कौन सा अखलाक है? ये आदतें तो मेरे शहर के कुत्तों में भी पाई जाती हैं, उन्हें डाल दो खा लेते हैं, धुतकार दो चले जाते हैं, बुला लो फिर आ जाते हैं। फरमाया ये अखलाक तो मेरे शहर के कुत्तों में भी पाया जाता है। राती जागें शेख सदावें, राती जागन कुत्ते तैथू उत्ते, दर मालिक दा मूल नहीं छड़ दे, भावें 100 मारे जुत्ते तैथू उत्ते, सारी राती जागदे रहंदे, डीहा वंज रूड़ियां ते सुत्ते तैथू उत्ते, एक बुरकी दावी ओ मूल नहीं छड़ दे, और सारी राती राखी कर दे, डीहा वंज रूड़ियां ते सुत्ते तैथू उत्ते। उठ बुलिया हुण यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैथू उत्ते। फरमाया ये अखलाक तो हमारे शहर के कुत्तों में भी मियाँ पाया जाता है। तो ये है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखेंगे तुम्हारे आमाल की क्वालिटी क्या है, तुम कैसे अमल करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो थोड़ी सी माँ बाप की खिदमत कर लेना तो हम समझते हैं शायद हमसे तो बड़ा नेक ही कोई नहीं। बाप ने किसी के सामने कह दिया मेरा ये बेटा बड़ा नेक है, मेरी बड़ी खिदमत करता है, हम फूले नहीं समाते हैं, हम कहते हैं अब तो अब्बे ने भी मोहर लगा दी है, मैं बड़ा चंगा। अब तो अम्मी जान भी कहती हैं लोगों के सामने मेरा पुत्र बड़ा चंगा है। वे औलाद किंज दी भी होवे, माँ प्यो कदी भी भैड़ा नहीं कहते। हमें अपनी तरक्की नहीं रोकनी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, नेक आमाल की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माँ बाप की खिदमत में हमें जो है रुकना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी जन्नत है। रसूलुल्लाह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह, अपनी माँ को कांधों पे बिठाकर काबे का हज करवाया है, क्या मैंने हक अदा कर दिया? मेरे नबी ने फरमाया तेरी पैदाइश पर जो तेरी माँ ने तकलीफ़ें सही हैं, उन तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ का भी तूने हक अदा नहीं किया। फरमाया कहाँ तूने हक अदा कर दिया? हमारे तो अंदर बुत हैं हजरत, हसद का बुत, तकब्बुर का बुत, फूल जाने वाला बुत। बस मैंने माँ बाप की खिदमत, मैंने हज नहीं करवाया, मैंने उम्रा नहीं करवा दिया अम्मी अब्बू को, इससे बड़ी और नेकी क्या हो गई है? मैंने तो सारे हुकूक पूरे कर दिए हैं, मैंने तो अम्मी को हज भी करवा दिया है, अब्बू को उम्रा भी करवा दिया है, मैं तो उनको दुआई भी महीने बाद ला कर देता हूँ। हमने तो खुद ही अपनी अना के बुत खड़े कर लिए और हम समझ बैठे कि हम तो मुकम्मल हो गए। रब कह रहा है मैंने ज़िंदगी और मौत बनाई ही इसलिए है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखेंगे तुम्हारे आमाल की क्वालिटी क्या है, तुम कितने अच्छे अमल करते हो। अल्लाह अकबर। हम तो सारा कुछ लेके, भार बोझ लेके सारी चीज़ों का फिर सजदा कर रहे होते हैं। वो किसी ने, गलबन इकबाल ने कहा था कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में।
दिल विच अपना पत्थर लैके दिल विच शहावत ते हसद तकब्बुर दे बुत लैके बैठा होया है, तैनू किथों रब लभेगा? और रब ते तां मिलेगा जे रब वाला बन के दिल नू सुथरा करके माँ बाप दी खिदमत करके अल्लाह से फिर भी अर्ज करेगा, रब्बा मैं ते कुछ भी नहीं कर सका, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बा रहम करी जिंज दा इन्हां ने छोटिया हुंदियां मेरे ते रहम फरमाया सी। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखेंगे कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। सबसे पहले अपनी आदतें ठीक करें, और आदत ये नहीं है कि रोटी कम खाना शुरू कर दें, ये भी अच्छा अमल है, रोटी कम खाएं, नींद कम आएगी, इबादत ज़्यादा करेंगे, लेकिन आदत क्या है? तकब्बुर छोड़ें, हसद छोड़ें, लोगों से जलना छोड़ें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, रब पर भरोसा करना, तवक्कुल अलल्लाह की आदत को अपनाना। फरमाया अपने रब पर भरोसा करना, और जब तुम ये करोगे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। अल्लाह पर भरोसा। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे, ऐ बंदो अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे तो रब तुम्हें रिज़्क ऐसे देगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है। रब तुम्हें रिज़्क ऐसे देगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे ते पल्ले खर्च ना जीरा हूँ, रोज रोजी उड़ खावन हमेशा ते करन ना जखीरा हूँ, मौला खर्च पुचावे बाहू जो पत्थर दे विच कीड़ा हूँ। पत्थरों में कीड़ों को भी रिज्क दे रहा है, वे तेरा रिज्क कैसे रोकेगा? उस पर भरोसा करके तो देख। अपनी आदतें ठीक कीजिए। हमारा मसला ये है कि हम भरोसा ही नहीं करते, और फिर हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम सारे काम खुद करना चाहते हैं। हमारा मसला, हम सारे काम, हमने अपनी इज्जत का दिफा भी खुद करना है, हमने लोगों के सामने नेक भी अपने आप को खुद ही बनाना है, हमने लोगों से अपना मुकदमा भी खुद ही लड़ना है, हमने लोगों से अपनी तारीफ खुद ही करवानी है, हमने लोगों के निश्तर भी खुद ही सहने हैं, हम सारे काम खुद ही करते हैं, बदला भी हम खुद ही लेते हैं। कोई काम उस वास्ते भी छाड़ दो, कुछ काम उसके लिए भी छोड़ो, और जब उस पे अपने काम छोड़ोगे तो फिर देखना रब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हज़रत इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, हम करोड़ों हनफियों के पेशवा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैह रहमा, किन्ना वड्डा आलिम, इलम दुनिया दा बादशाह, ते इलम भी सी ते फकीर भी सी। खाली बाबा जी गल इलम नाल नहीं बनती, कोई थोड़ी जी जाग लगे तो फिर गल बनती है। इमाम आज़म अलैह रहमा, आपके वालिद गिरामी फौत हो गए, आपके वालिद साहब दुनिया से पर्दा कर गए। हर एक ने जाना है, अमीर गरीब कस ना कस, आलिम फाजिल जाहिल अजहल, सब ने जाना है, टुर जाना है सारे। आपके वालिद गिरामी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। 3 दिन आप घर में रहे, लोग ताज़ियत के लिए आते रहे, फातिहा पढ़ने के लिए आते रहे। तीसरे दिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह घर से निकले, तो जिन्ने ज़्यादा चाहण वाले होवन ना, उनदे नाल सड़न वाले भी उन्ने ही ज़्यादा हुंदे ने। जिदी रब जिन्नी शान वधावे ना, उहदे नाल हसद करन वाले भी
मीठा मीठा हप हप ते कौड़ा कौड़ा थू थू। जब लोग तारीफ करें तो सुभान अल्लाह। अगर दो बंदे तनकीद कर देन ते मुंह बन जावे, ले मेरी तो हुण इज्जत ही नहीं रही। ना ना, अगर लोग तनकीद कर रहे हैं, चोर डाका उत्थे ही पांदा है, डाकू डाका उत्थे ही मारदा है, चोर चोरी उत्थे ही करदा है जिथे हजरत कोई समान होवे, जिथे कोई शै होवे, और पल्ले कोई शै होवे, ते फिर ही लोग तनकीद करते ने। एवें चूड़े जे बंदे दी केड़ा हसद करना लई, हासद ओदा ही हुंदा है जिदे पल्ले कोई शै होवे। ते मेरे इमाम दे मनन वाले भी लखां, लेकिन जलन वाले भी वावा सारे सन। ते एक बंदा सारा बगदाद जानदा सी, कूफा सारा जानदा सी कि ए बंदा इमाम आजम दा बड़ा वड्डा मुखालफ है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह घरों निकल के मस्जिद वाले जा रहे ने, ते उन्हें पिछू आवाज दी, क्या अबू हनीफा? आप रुक गए। क्या सुनया है तेरा प्यो मर गया है? आपने सह गए। फरमाया अल्लाह दा हुक्म। कहने लगा सुनया है तेरा अब्बा फौत हो गया है? फरमाया हाँ। कहने लगा तेरी मां दा खसम मर गया है, अपनी मां दा निकाह मेरे नाल कर दे। फरमाया तेरा बाप टुर गया है, अपनी मां दा निकाह मेरे नाल कर दे। क्या आप में से कोई ये बर्दाश्त कर सकता है? बताएं, सह सकते हो? आप फरमाते हैं मैं सह गया। मैंने कहा मैंने रसूलुल्लाह का दीन दुनिया को बताना है। सब्र कर गए। कहते हैं मेरा दिल तो किया इसके चेहरे पे थप्पड़ मारूं, एक इशारा करूं मेरे शागिर्द इसकी बोटियां नोच डालें, लेकिन नहीं। आपने सब्र का घूंट पिया और फरमाया मियाँ मेरी माँ आकिल भी है, बालग भी है, इद्दत गुजर जान दे, मैं उस तो बाद उहदे नाल गल करांगा। अगर उन्हें कबूल कीता तो मैं तेरा निकाह मां नाल कर देंगा। इन्नी गल कह के टुर गए। आप अगे टुरे, वो बंदा दिल ते हाथ रख के थले डिगया, अटैक होया, मर गया। लोग टुर पे इमाम साहब कोल, सरकार दिल ते हाथ रख के वो ते मर गया, अटैक होया, ओनू की आख्या जे? आपने फरमाया कुछ भी नहीं आख्या। उन्हें समझिया सी मैं ला वारिस हाँ, उन्हें समझिया मेरा वारिस कोई नहीं। वो नहीं जानदा मैं वारिस वाला वां, वो नहीं जानदा मैं वारस आला वां, ओए मेरा भी कोई वारस है। फरमाया उन्हें मैनू इन्नी डाढ़ी गल कीती, मेरा कलेजा चिर गया। मैं सबर करके ओदी अदालत विच फैसला दे छड़िया। ओ मेरे वारिस नू गुस्सा आया, उसने उधार रखिया ही नहीं। अबू हनीफा दे सबर ने ओदी जान ले लेती है। फरमाया अबू हनीफा दे सबर ने ओदी कुछ काम ओदे वास्ते भी छड़ दिते करो, सारियां चीज़ां खुद ना कीता करो। हजरत इमाम हसन मुजतबा आप नू जहर दिता गया। आप दे भाई, आप दा सोना वीर सैयद शोदा इमाम हुसैन भरा कोल आए, हाथ जोड़ के कहंदे ने वीरा दस ते सही तैनू जहर किने दिता है? इमाम हसन मुजतबा आपने फरमाया हुसैन भाई अगर जिस पर मुझे शक है उसका नाम बताऊं, उसने ना दिया हो, एक बेगुनाह का नाम बता के गुनाहगार खुद बन जाऊंगा। और अगर उसी बंदे ने दिया है जिसके बारे में मैं जानता हूं तो फिर भी तुझे नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मैंने अपना फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है। मैंने उस पर अपना फैसला छोड़ दिया है, पर मैं तुझे क्यों बताऊं? तो हजरत जिस पर शक है मैं उसके बारे में भी नहीं बता रहा, तो इसलिए सारे फैसले खुद ना कीते करो। कुछ गल्लां उस रब वास्ते, कुछ चीज़ां उसनू भी करन दितियां करो, तो जदों ओदे वास्ते छड्ड देवोगे फिर वो तुहानू कल्ला नहीं छड्डेगा। वो एक चौधरी साहब हैं, तो हर रोज़ ही उनके पास कोई ना कोई मुकदमा, कोई पंचायत आती रहती है। तो उनसे किसी ने पूछा बाबा जी सब तो मुश्किल फैसला केड़ा हुंदा है? तुसी हर रोज़ ही बंदियां दे फैसले करदे हो, तो सब तो मुश्किल फैसला केड़ा? वो कहने लगे मौलवी साहब जदों कोई बंदा आके मैनू कहंदा है ना चौधरी साहब तुसी जो भी फैसला करो मैनू कबूल है, हुण तुहाडी ते नहीं ना मोड़नी, कहंदा मौलवी साहब अल्लाह दी कसम वो फैसला बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, वो फैसला डाढ़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हें सारी मेरे ते सुट दी,
हज़रत साहब फरमाते ने मैं सोचन लग पिया वो यार बंदा बंदे ते सुट देवे ते ओ ना इंसाफी नहीं करता ते जदों बंदा रब ते छड्ड देवे मेरे या रब्बा जो करना है तू करना है ते फिर रब ना इंसाफी किवें करेगा। इसलिए सारे काम खुद ना किया करो, कुछ रब पर भी छोड़ दिया करो। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ज़रा बस्ताम तो निकल के किसी जंगल बियाबान किसी दूर दराज इलाके विच जाके इस रमज़ान का एतकाफ़ करा। शाबान की आखिरी दिनों में चल पड़े, रमज़ान का चन्न चढ़िया, एक देहात एक पिंड विच पहुँचे, मस्जिद विच तशरीफ़ लै गए। नमाजियां ने पूछा बाबा जी कित्थों आए हो? फरमाया दूर दराज तू मुसाफिर हाँ ते महीने का एतकाफ़ करना है। एतकाफ़ ते बह रहे वो दो चार नमाजी नेड़े होए, कहने लगे बाबा जी दूर तू आए हो, एतकाफ़ बह रहे हो, रोटी कित्थों खाओगे, सहरी अफ्तारी? फरमाया अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। कहने लगे बाबा अल्लाह देवेगा, कोई हिला वसीला? फरमाया वसीला करना जायज़ है लेकिन रब वसीलियां दा मोहताज ते नहीं ना, वो आपे दे छड़ेगा। वो दो चार बंदियां नूं समझाया, टुर गए। फजर दी नमाज हुई, दो होर बह गए, बाबा रोटी कित्थों खाएगा? उन्होंने समझाया, जोर दी नमाज एक होर ने पूछ लिया, ओए बाबा कित्थों आया है, रोटी कित्थों खाएगा? तंग हो गए आप। नाल ही मस्जिद दे मकान सी यहूदियां दा, आवाज़ दी कोई खादिमा कोई औरत खिदमत करने वास्ते है? उन्हें कहा बाबा जी है। फरमाया मैं तू पैसे ले लो, तुहाडा ज़बीहा नहीं चाहिए, दो रोटियां सुबह दो शाम नूं मसीते पहुंचा देना, पैसे मेरे को ले लो। पैसे दे दिते, गल हो गई। हुण हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जदों गल कर लई ना ते आप दिल विच सोचदे ने हुण कोई पुछे ते जवाब देवां। असर दी नमाज पढ़ी, एक बंदा बोल पिया, ओए बाबा तेरी रोटी का इंतजाम होया, रोटी कित्थों खाएगा? आप खड़े होए ते उच्ची आवाज न लाखिया, फरमाया मियाँ मेरी रोटी का इंतजाम हो गया है, ए मस्जिद दे नाल यहूदी दी बिल्डिंग है, इत्थे मुसलमान भी रहंदे ने यहूदी भी रहंदे ने, मैं पैसे भेज छड्डे ने, ये दो रोटियां सुबह दे देणगे, दो शाम नूं दे देणगे, मेरी रोटी का इंतजाम हो गया है। सारे बंदे चुप हो गए, सारे फजर दी नमाज पढ़ी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी खड़े हो गए, फरमाया ओ वड्डे नमाजियो सारे मेरे नाल कलमा पढ़ो, सारे फिर मुसलमान होवो। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्हें क्या बाबा खैर है, चंगे भले मुसलमान हुण नमाज पढ़िए, कादा कलमा पढ़ाना ही? फरमाया मैं तुहानू तरले पाए, मैनू रब रोटी देगा, तुसी एक ने भी नहीं मन्नी। जदों तुसा पुछया रोटी कित्थों खाएगा, मैं सारियां नू कलियां कलियां समझाया रब देवेगा, तुसा क्या कित्थों आएगी? मैं तुहानू कहा नाल यहूदियां दे घरों आएगी, ते सारे चुप हो गए। ओए तुहाडा ते रब नालों इन्हां बंदियां ते ज्यादा भरोसा है, ओए कादे मुसलमान हो? पढ़ो कलमा फिर मुसलमान हो जावो। अल्लाह अकबर, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुहाडा ते रब नालों बंदियां ते ज्यादा भरोसा है, ओए कादे मुसलमान हो? अल्लाह पर भरोसा। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक किया है कि हम परखेंगे, हम जांचेंगे तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, हम देखेंगे तुम्हारे अमाल की क्वालिटी क्या है, तुम्हारा हमारे ऊपर भरोसा कितना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आजकल हम तो अल्लाह पर भरोसा है ही नहीं हजरत, हम समझते हैं शायद मेहनत से ही सारा कुछ कमाया जाता है। हजरत जितने भी लोग ऊपर गए हैं सारे मेहनत की वजह से नहीं गए। मेहनत करना ठीक है, मेहनत भी की है लोगों ने, लेकिन मेहनत नाल अज तक कोई उत्ते नहीं गया, जेड़ा भी गया रब दे फजल नाल गया है। वो मियाँ साहब कहते ने ना, बड़े बड़े ऐसा ढेंदे के, बड़े बड़े
साढ़े वेखे ते जोरावर सथराने ओ बेवकूफां दे नौकर वेखे ते दानिशमंद सियाने। अंगूठा छाप बंदा PhD बंदा ਉਹਦੇ थल्ले काम कर रही है। हुण की कहोगे? ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ 5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 50 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 50 ਉਸਤਾਦ PhD ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बेवकूफां दे नौकर वेखे दानिशमंद सियाणे। हर कोई मेहनत नाल नहीं, रब दे करम ते फजल नाल उत्ते जांदा जे। ओदी बारगाह दे अंदर झुकीए, अल्लाह ते भरोसा भी करो। ते इस तो बाद दूसरी आदत लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अच्छियां आदतां विचों एक आदत सबर ते शुक्र भी है जे। अल्लाह दी बारगाह विच सबर करो, शुक्र करो। असीं ते 360 हड्डियां ने बंदे दे जिस्म विच। किनियां? 360 जोड़ ने बंदे दे, 360 हड्डियां ने। ते बंदा पूछे ना, हाँ बई सुना तबीयत दा की हाल है? बड़ा अल्लाह दा शुक्र है, बस इस घुटने विच बड़ी दर्द है। 359 दा ते जिक्र कर। एक जड़ी हड्डी नू दर्द है ओदा शिकवा ते कर लिया ही, 359 दा शुक्र नहीं कीता ही। हजरत राबिया बसरिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हां दे हमसाए विच एक जवान रहिंदा सी, एक मर्द रहिंदा सी। ते पुराना दौर वो देहातां विच लोग जानते होंदे सन किदा पुत्तर है, इहदा दादा कौन है, इहदा परदादा कौन है, इहदी नानी कौन है, इहदा नाना कौन है, लोग जानते होंदे सन। वो चंगा दौर सी, एक दूजे दे खबर खैर हुंदी सी। हजरत राबिया बसरिया घर दे बाहर बैठियां ने ते वो बंदा अपने घरों से मत्थे ते पट्टी बन के बाहर निकला। आपने बुलाया, फरमाया भी तैनू की होया है? कहने लगा, अम्मा जी अज सिर नू बड़ी पीड़ चढ़ी हुई है। फरमाया कितनी उम्र हो गई? कहने लगा कोई 35-40 साल ते हो गई। फरमाया पहले भी कदे कुछ होया ही? क्या नहीं, शुक्र है मालक दा, आज तक सिर पीड़ भी नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं आई। फरमाया 35-40 साल कोई शुक्र दी पट्टी बन के बाहर निकला है? जरा दर्द हुई तो शिकवे दी पट्टी बन लई ते लोकां नूं विखांदा फिरना मेरे सिर नूं पीड़ है। 35-40 साल जिस रब ने तैनू सेहत दिती सी ओदे शुक्र दी पट्टी बन के लोकां नूं दसिया ही कि रब दा शुक्र बड़ा है, शिकवे दी पट्टी फौरन बन के बाहर आ गई है। असी हजरत शिकवे करने वाले हाँ, शुक्र करने वाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे सन, वो लोग इकट्ठे होए, एक बंदा जमीन ते पिया, अखां भी नहीं, हाथ भी कट्टे हुए, पैर भी कट्टे हुए, ते जुबान तो कह रही है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, या अल्लाह तेरा, या अल्लाह तेरा। और लोग सारे इकट्ठे हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी रुक गए। आपने फरमाया भी की होया है? फरमाया सरकार अजीब हालत है, ना अखां ने, हाथ भी कट्टे हुए, पैर भी कट्टे हुए, इहदे कोलों पुछो केड़ी गल ते शुक्र कर रही हैं। हजरत ईसा नबी थल्ले चुक के ओदे कन नाल मुंह ला के कहंदे ने, ओए बंदे परेशान ने, केड़ी नेमत ते शुक्र कर रही हैं? ओए ना पैर नहीं, ना हाथ नहीं, ना अखा नहीं, और केड़ी नेमत ते शुक्र कर रही हैं? ओदा चेहरा खिल उठा, मुस्कुरा के कहंदा है ईसा नबी शुक्र कर रही हैं रब ने मैनू ईमान दी दौलत अता फरमाई है। इस तो वड्डा उसका शुक्र की है कि ईसा नबी मेरे नाल गल कर रही है। कोई गल नहीं पैर नहीं, कोई गल नहीं हाथ नहीं, कोई गल नहीं अखा नहीं, अल्लाह ने मैनू ईमान ते दिता है, ईसा नबी तेरा उम्मती ते बना छड़े है। अपने आप नू जरा उस बंदे दी जगह रख के सोचो, उस बंदे दी जगह। असी तो शिकवे दी पड़ोले भर के नाल लई फिरने, हल्का थोड़ा जिहा मसला होया तो शिकवे दी पटोरी। हाँ भी बाबा जी की हाल है? वो मौलवी साहब शुक्र है रब दा करम ही होया पिया है, बस दुआ कर छोटा पुत्र भी नौकरी लग जाए ना तो फिर ते कमाल हो जाए। वो सारे जो लगे हुए नहीं, एक नहीं भी लगा तो शिकवा क्यों करदा फिर मैं?
وہ بس مولوی صاحب دعا کر ایک دھی پتر رہ گیا وہ ویاہ ہو جائے پھر میں ویلا. وہ 5 پر نال ہے نہیں وہ تے شکر نہیں کرنا ہے, ایک دا پریشانی لے کے بیٹھا ہوئے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر ادا کرو ہم تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. تم شکر ادا کرو ہم تمہیں, شکوے سے شکر بہتر ہوتا ہے شکوے سے. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیرہ, ماشاءاللہ, اللہ اکبر. درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. اللہ اکبر. تو اپنی عادت کو شکر والی عادت بنائیں. شکریہ اللہ کا, ہر حال میں رب کا شکر اور صبر کریں. اور اپنی عادتوں میں سے ایک بہترین عادت, اپنی نیکیوں کو چھپایا کرو. اپنی نیکیاں ظاہر کرن واسطے نہیں ہوندیاں, نیکیاں چھپان واسطے ہوندیاں نے. اللہ دے نبی دا فرمان ہے کل قیامت دے دن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ چاہے گا, اود پہاڑ جنیاں ہوندیاں نیکیاں ہون گیاں. وہ چاہے گا کہ اللہ مینو ایدہ اجر دے وے. رب فرمائے گا جنہ واسطے نیکیاں کیتیاں نہیں جا انہاں کولو اپنا اجر لے لے. میرے واسطے تے ککھ بھی نہیں کیتا ہی, میرے واسطے تے ایک نیکی بھی نہیں کر کے آیا, جا جنہ واسطے کیتیاں نہیں اودا واسطے لے لے. اس واسطے نیکیاں نو چھپایا کرو. اسی چھاپن والے لوگ ہاں, چھپان والے. اسی تے کہنے 500 روپیہ بھی مسیتے دئیے نا تو کہنے اعلان کر مولوی صاحب محمد بشیر ولد نذیر گلی نمبر 8 فلانے دا پتر انہیں اللہ دے گھر وچ 500 روپیہ دیتا ہے. وہ خالی بشیر کہہ دئیے نا تو بعض اوقات آ جاندہ ہے, کہندہ لے تو میرا نا ہی صحیح نہیں لیا. وہ لوکی سمجھن کے خیر ہو پرلا بشیر پرلی گلی والا, تینوں کیا سی پیو دا بھی نا لویں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اکثر ختم درود پہ جاتے ہیں, یہ چہلم ختم کلوں پہ جاتے ہیں, وہاں لوگ پرچیاں دیتے ہیں. حضرت اے دعا کرنا 10,000 قرآن پاک 50 سورت یاسین. رات ماں فوت ہوئی, صبح 10,000 قرآن پاک پڑھ کے لے آیا. میں کہا یار اینے کہ تو پڑھ کے لے آیا؟ کہندہ کٹھے کیتے نے. میں کہا تو کی پڑھے ہے؟ کہندہ ایک باری الحمد بھی نہیں پڑھی. کنہ نو بخا رہے ہو؟ تو پھر مولوی صاحب دعا کرو لوکاں نو دسو. وہ ایک جگہ تے گئے تھے اتھے دعا کرن لگے جن نے قرآن پاک. تو بزرگ فرماندے نے پیر اجمل قادری صاحب فرماندے نے میں دعا کی تھی کہ یا اللہ جو پڑھا پڑھایا ہے قبول فرما. وہ بعد وچ مولوی صاحب وہ بعد چودھری صاحب لڑ پے, کہن لگے تو دسیا کیوں نہیں کہ 20,000 قرآن پاک سی. آپ فرمان لگے کنوں دسنا ہی, کنوں دسنا ہی, کس کے لیے پڑھا ہے؟ حضرت ہم تو دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں. وہ نیکیاں چھپائی جاتی ہیں, دکھائی نہیں جاتی. اپنے اندر یہ عادت اپنا لو. رب فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے, ہم جانچیں گے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے, تمہارے اعمال کی کوالٹی کیا ہے. اس کی بارگاہ میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کثرت نہیں دیکھی جاتی, دلوں کا نور دیکھا جاتا ہے. مدینہ شریف کے راستے پر مسافر جا رہے تھے تو ایک ہوٹل پہ رکنا ہوا. تو وہاں ساتھیوں نے کہا کھانا کھا لیں. جب کھانا کھایا تو پاکستانی تھے, وہ ہوٹل بھی پاکستانیاں دا سی, تو واہ واہ چنگا لگیا. ایک دی بجائے 2 روٹیاں کھا لیاں. جی میں چند دن پہلے اسی سندھ تو واپس آ رہے ساں تو وہ ایک ہوٹل تے رکے. اس ہوٹل تے جدو رکے تو انہوں نے کھانا واہ واہ اچھا سی. سارے ساتھی نال سن, عقیل بھائی ہوری بیٹھے نے. وہ جنہوں نے ایک کھانی سی انہوں نے بھی 2 کھا لیاں, کیونکہ جدو دل نو لگ جاوے تو بندہ نہ چاندیا ہویا بھی کچھ وہ کھا لیا. ساتھی کو کہا جا پیسے دے کے آ. جب ساتھی پیسے دینے گئے تو وہ کاؤنٹر پہ جو بیٹھا تھا اس نے کہا تمہارا بل ہو گیا. تمہارا. وہ پیر اجمل قادری صاحب کہتے ہیں میں اٹھیا تو وہ کول چلا گیا.
मैं क्या असी ते सारे इत्थे बैठे हाँ, साडा बिल किसने दिता है? कहने लगा हज़रत एक शेख सुबह सुबह आंदा है ते इन्ने सारे पैसे दे जांदा है, कहंदा जेड़ा भी मदीने नू जा रिहा होवे ओनू मुस्तफा दा मेहमान समझ के मेरे खाते चों ना सदका है ना ज़कात है, तोहफा समझ के ओनू रोटी खवा देना। तोहफा समझ के मैं कहते ने पीर अजमल कादरी साहब कहते ने मैं बड़ा जोर लाया यार किसी होर नूं खवा देवीं, साडे कोलों पैसे ले ले। कहंदा ना, ओहदे नाल वादा कीता है जेड़ा भी मदीने दा राही होवेगा ओनू खाना खवावांगा, पैसे नहीं लेने। मैं कहा अच्छा फिर इंज कर ओहदा नां ही दस छड़, मैं ओहदा नां लैके मदीना शरीफ दुआ करांगा, बंदा बड़ा चंगा लगा है। कहंदा वो पाकिस्तानी होटल वाला मैनू कहन लगा पीर साहब अल्लाह दी कसम मुद्दत हो गई आंदा है, अज तक नाम उन्हें दसिया ही नहीं। कई बारी पूछे है, वो कहता है हजरत अगर ना दसना हुंदा तो फिर तैनू ही पैसे देने हुंदे। पर मैं मेरा ते रब दा मामला है, ओए नेकियां छुपाया करो, नेकियां छुपाण वास्ते हुंदियां ने, दसन वास्ते नहीं हुंदियां। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे वली जलीलुल कदर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप कूफा जाया करते सन इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा नू मिलन वास्ते। आप अक्सर महीने विच एक दो वारी हजरत इमाम साहब नू मिलन जांदे ते कूफे दे नज़दीक एक सराय हुंदी सी। अजकल होटल ने, पुराने दौर च सराय हुंदियां सन मसीतां दे नाल, मस्जिदां दे नाल। उस सराय विच हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रुकदे ते उस सराय दे विच एक नौजवान चमकदा चेहरा, दिल भी सुथरा ते शक्ल भी सोहनी, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की खिदमत करदा, आप नू रोटी शोटी खवांदा, आप नू भी ओहदे नाल प्यार हो गया ते ओनू भी आप नाल प्यार हो गया, चंगा लगन लग पिया। चंद दिन गुजरे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तशरीफ लैके आए, देखा नौजवान कोई नहीं। सराय दे मालिक नू पूछा वो नौजवान कित्थे है? वो कहन लगा सरकार डाढ़ा गरीब सी, एक बंदे को कर्ज लिता सी वापस नहीं कर सका, उन्हें मुकदमा कर दिता है, महल्ले का कोतवाल SHO पकड़ के उन्होंने लै गया है, उन्होंने छुड़ाने वाला भी कोई नहीं, वो तो थाने विच बंद होया भी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कोतवाल कोल गए, फरमाया वो सुनिया इंज दा नौजवान फलाने सराय तो पकड़ के ले आया है, अगर मैं ओदा कर्ज अदा कर दियाँ छड़ देंगा? उन्हें क्या बाबा जी छड़ देंगा। फरमाया फिर एक वादा कर, उन्होंने दसेगा नहीं कि तेरे पैसे किन्ने अदा किए ने। फरमाया वादा कर, अल्लाह नू हाजर नाजर करके मेरे नाल वादा कर, दसेगा नहीं कि तेरा कर्ज किन्ने दिता। उन्हें क्या वादा रिया, पैसे दिते, नौजवान बाहर आ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दूसरे फेरे ते मिले, आके मिलिया, कहने लगा बाबा जी नेक ते तुसी भी बड़े हो, लेकिन एक नेक इंज दा भी टकरिया है जिन्हें मैनू आजाद करवाया है। फरमाया मेरे पैसे मैं जानदा भी नहीं, एडी वड्डी नेकी, इन्ना पैसा सी मैं ते सारी जिंदगी जेल विचों बाहर ही ना आ सकदा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रो के कहंदे दुआ कर अल्लाह इंज दी नेकी मैनू भी करन दी तौफीक देवे। जदों मिलदे वो कह छड़दा, आखिरकार वक्त गुजर गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जिंदगी ढल गई, कूफा आन जान खत्म हो गया, घर दे विच रहन लग पे, वो भी बुढ़ा हो गया। उस कोतवाल नू एक दिन किते वो कोतवाल भी अलग हो गया, रस्ते ते चलदे होया वो कोतवाल मिलिया, बुढ़ा कोतवाल, ते ओदे पैरी पकड़ के वो नौजवान जिहड़ा अज बुढ़ा हो गया कहंदा कोतवाला तैनू वास्ता रब दा ही, हुण ते मौत भी आण वाली है, बस दस छड़ मेरा कर्ज किन्ने दिता सी, मरन तो पहले मैं ओदा शुक्रिया अदा कर लवां। काफिर सुन, अगर इन्ने ही वास्ते पा रही हैं ते तेरा जेड़ा कर्ज देंदा है, जेड़ा दिने तेरा कर्ज दिता सी तू लखां वार उन्होंने मिल चुका है। उस बाबे दा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक सी। तड़प गया, कहने लगा ओ बाबा, ओए मैं ते ओनू इंज दियां गल्लां सुनांदा सी। दौड़िया, जदों दौड़ के हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दे इलाके विच पहुंचया, आप दा मकान पूछया, जदों आप दे घर पहुंचया ते कुछ लोग आ रहे ने कुछ जा रहे ने। जदों पूछया क्या की होया है, क्या अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दा विसाल हो गया है।
घर आया, आके चेहरे तो कपड़ा हटाया, जदों नूरानी चेहरा तकिया ते उत्ते झुक के अखां विच अथरू लिया के कहंदा है बाबा मैनू तेरियां नमाज़ां दी खबर नहीं, बाबा मैनू ये नहीं पता तू किन्ने हज कीते ने, लेकिन जेड़ी नेकी तू मेरे नाल कीती है मैनू गुमान है, अल्लाह उस दे सदके तैनू बख्श छड्डेगा। जेड़ी नेकी मेरे नाल कीती है अल्लाह तैनू उस दे बदले बख्श छड्डेगा। कुछ नेकियां रब नाल भी करो, सारे काम दुनिया वास्ते ना करो, कुछ गल्लां रब नाल भी कर लिता करो। नेकियां छुपाई जाती हैं, नेकियां दिखाई नहीं जाती। और रियाकार हजरत ये तो बड़ी वड्डी बीमारी है, अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी लग जाए ना, लोग मेरी तारीफ करन, फिर बंदा सारा दिन परेशान रहता है कि आज लोगों ने मेरी तारीफ नहीं की थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाया करते थे रियाकार तो मरते हुए भी रियाकारी की तलब रखता है। लोगों ने पूछा हज़रत वो किंज? फरमाया जो मरन लगता है तो वो चाहत होंदी है मेरा जनाजा बड़ा वड्डा सारा होवे, इससे निकलो, जिंदगी बड़ी सुकून वाली हो जाएगी, जिंदगी ठंडी ठार हो जाएगी, इस चीज़ से निकलो बाहर के लोग क्या कहते हैं, लोगों की तारीफ़ों से बाहर निकलो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दुनिया से चले गए, अखां जदों मीटियां ज़माना सानू रोवेगा, अखां जदों मीटियां ज़माना सानू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों मैं न दिसिया मैं खाना नू मिखाने विच, जदों ना मैं दिसिया मैं खाना नू मिखाने विच, जाम टुट जाणगे मिखाना मैनू रोवेगा। लुक लुक रोणगे ते कोई बुक बुक रोणगे, लुक लुक रोणगे ते कोई बुक बुक रोणगे, गलियां दा अयाना ते सयाना सानू रोवेगा। अखां जदों मीटियां ज़माना सानू रोवेगा। रो के कहंदा है कि सारी दुनिया ज़ियारत करन आई है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दी। वाह अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इंज दी नेकी कर गईयां है, मैनू रब दी बारगाह विच गुमान है अल्लाह तैनू बख्श छड्डेगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है कि हम जान सकें तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। हम तुम्हारे आमाल की क्वालिटी देखेंगे कि तुम्हारे आमाल कैसे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हम तो रुक जाते हैं ना, बाप को उम्रा करवा दिया, अम्मी को हज करवा दिया, हमने कहा हमने तो हक ही अदा कर दिया। बाप ने किसी के सामने कह दिया मेरा पुत्र बड़ा खिदमत गुजार, बड़ा नेक है, हम समझते हैं लो हम तो वाकई माँ बाप के बड़े खिदमत गुजार हैं, हम आगे तरक्की नहीं करते, जबकि हमें हुक्म ये है नेकियों में आगे बढ़ते रहें। हज़रत फ़ारूक आज़म के लख्ते जिगर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था राजुलुन सालिहुन, अब्दुल्ला डाडा चंगा बंदा है। अपनी बहन हज़रत हफ्सा रसूलुल्लाह की ज़ौजा पाक थी, हज़रत उमर की बेटी, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की बहन। एक दिन भैन नूं मिलन गए तो भैन नूं कहंदे ने एक कर्म कर, रात दी तारीकी विच तन्हाई दे अंदर जदों रसूलुल्लाह राज दियां गल्लां करन ना तेरे नाल, ते उदों सरकार कोलों पुछी कि मेरे भरा दे बारे तुहाडा की ख्याल है। कुर्बान जावां किन्नी ख्वाहिश है, मैं सदके जावा मेरे लजपाल आका को पूछी कि मेरे भरा दे बारे तुहाडा की ख्याल है। हज़रत हफ्सा नूं मौका मिलिया, एक दिन पूछ बैठियां या रसूल अल्लाह मेरे भरा अब्दुल्ला दे बारे की ख्याल है। मेरे नबी ने फरमाया डाडा चंगा बंदा है, लेकिन मैं सुनिया इशा पढ़ के सौ जाता है तो फजर जमात नाल पढ़दा है, तहज्जुद नहीं पढ़दा। हज़रत हफ्सा ने आके दसिया सरकार ने इंज कीता है। हज़रत अब्दुल्ला रोन लग पे, फरमाया फिर अज तो बाद मैं तहज्जुद छड्डां नहीं। हालांकि हुक्म है ये इशा जमात नाल पढ़ो, फजर जमात नाल पढ़ो, काफी है सारी रात, लेकिन फरमाया अगे वधो। अब्दुल्ला चंगा बंदा है लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़दा, फरमाया अज तो बाद मैं रुकांगा नहीं, तहज्जुद भी अदा कीता करांगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए एहसास पैदा करें, नेकियां छुपाया करें और नेकी में आगे बढ़ने का जज्बा। और आखिरी बात, आखिरी आदत, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। ये पहले भी मैंने अर्ज किया, बारे दिगर लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम जांचेंगे तुम्हारे आमाल की क्वालिटी क्या है। वो एक सन्यासी
आजकल कीमियागर, उर्दू वाले उसको कीमियागर, इंग्लिश वाले कहेंगे, वो जिनके पास साइंसदान सन्यासी बाबा, वो सफ़र करद्या किधरों गुजर होया, देखा एक कुटिया दे अंदर एक फकीर बाबा बैठा है, कपड़े भी फटे पुराने ते वो कुल्ली भी कखां दी। तरस आ गया, कहने लगा बाबा मेरे को एक राज है, अगर इजाज़त होवे ते तैनू वो नुस्खा दे दियां। ते अल्लाह वालियां दी आदत हुंदी है, जेड़ा भी कोई लैके आवे वो दिल नहीं तोड़ दे, वो दिल नहीं तोड़ दे। पर मैं तेरे कोल की है? कहने लगा बाबा जी मैं सोना बनाना जानना। नुस्खा लिखिया कागज़ दे उत्ते लिख के ते बाबे नू पकड़ान लगा। पर मैं ऐसे ही कुल्ली दे किसे सुराख दे विच जिथे विथ है उत्थे लटका दे, जदों मौका मिलेगा असी सोना बना लवांगे। वक्त गुजर गया, कोई 2-3 साल तो बाद वही सन्यासी बाबा फिर उस इलाके विचों गुजरिया। दिल कीता वो बाबे दा हाल वेखा, हुण ते उन्हें महल बना ले होने ने, बड़े उठ बड़ियां बकरियां, बड़ा अमीर हो गया होना है, सोना बना बना के हुण ते बड़ा कमा चुका होना है। जदों टुरदा टुरदा उत्थे आया ते की देखिया कुल्ली उंज दी खड़ी है। कहने लगा शायद बाबा टुर गया, कोई और रहिंदा होएगा। अंदर आया तो वही बाबा अंदर बैठा है, पहले नालों भी हाल बुरा, ओ पहले नालों भी फटे हुए कपड़े। बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा बाबा तैनू एक नुस्खा दे के गया सा। फरमाया किथे सी? ओ जिथे लटका गया से उत्थे ही खड़ा है। वो खोलिया, क्या बाबा तू सोना नहीं बनाया? फरमाया यार टाइम ही नहीं लगया, टाइम ही नहीं लगया। उन्होंने समझाना भी सी ना। आप उठे, फरमाया यार नमाज दा वेला होना आया, चल आ हाजत होई हुई है, जरा खेतों में चलिए हाजत करके आ जाइए। वो सन्यासी नू नाल लिया ते जाके एक खेत दे विच बह गए, सतर नहीं खोलिया। उन्होंने समझाना सी ना, सतर नहीं खोलिया ते आवाज़ दे के कहंदे ने सन्यासी ओए कीमियागर, और यार मिट्टी दे ढेले ते चुके नहीं ते तहारत किंज करांगे, जरा इथों 3 मिट्टी दे ढेले ते चुक के देवी। वो सन्यासी बाबा जदों मिट्टी दे ढेले चुकन वास्ते झुकिया ते जदों नजर पई ते सारी जमीन ही सोने दी, सारी जमीन ही सोने दी, एक ढेला दूसरा ढेला, जिन्नू चावे सोना। बाबे ने कहा ओए लियांदा नहीं मिट्टी? कहंदे बाबा जी मिट्टी है ही नहीं सोना। ते फरमाया यही पकड़ा दे। कहने लगा इन्ने वड्डे बाबे हो ते तुहानू इन्ना पता नहीं सोने नाल अस्तंजा नहीं हुंदा। आप उठे मुस्कुराए, फरमाया सानू ओ दे के गए जेड़ा अस्तंजा भी नहीं कर सकदा। सानू वो चीज का वल सिखा रही है जिदे नाल इस्तंजा भी नहीं हो सकता, सानू देना ही तो कोई और चीज दे। वो चीज दे के गई है जिदे नाल इस्तंजा भी नहीं हुंदा। सोना दे के गई है, इस वास्ते सोने वास्ते तू नहीं। फरमाया सोना तेरे वास्ते है। वो मियाँ साहब ने आख्या सी ना, आ फरमांदे ने रेत वजूद तेरे विच सोना, वो सोना तो तेरे अंदर है। रेत वजूद तेरे विच सोना ते एवें नजर ना आवे, हंझूंदा घट पानी धोवे। मियाँ साहब कहते ने तेरे अंदर सोना है लेकिन एवें नहीं निकलदा, पहले अल्लाह दी बारगाह विच रो, जदों हंझू वगावेगा ते फिर रेत रुड़ जावेगी, फिर विचों खालिस सोना निकलेगा, फिर हालत हो जावेगी जिधर वेखेगा वही सोना बन जावेगा। रेत वजूद तेरे विच सोना ते एवें नजर ना आवे, हंझू दा घट पानी धोइए, रेत मिट्टी रुड़ जावे ते पारा घट मुहब्बत वाला, पारा घट मुहब्बत वाला गोली हिक बनावे, रेत रले विच रेत मुहम्मद सोना कीमत पावे। महमूद गजनवी अल्लाह पर भरोसा करें। आपने बादशाह होंदे ने ऐलान किया दरवाज़ा बंद कर दियो शहर दा, शहर दा दरवाज़ा, जेड़े अंदर ने अंदर, जेड़े बाहर ने बाहर, जिन्ने अंदर सन महल विच बुला लिया। खादम नू कहा अंदर जिन्ने भी मेरे हीरे ते जवाहिर पड़े ने बाहर ला के इत्थे विछा दे। सारे हीरे जवाहिरात विछा दिते। ऐलान हो गया, फरमाया जिदे ते कोई हाथ रखेगा ओ हीरा ओदा,
جدے تے ہاتھ رکھو گے. ایک لونڈی اگے ود کے کہندی ہے بادشاہ اگر جان دی امان پاواں تو کی کہہ جدے تے ہاتھ رکھو گے او دا کیا. ہاں کیا پھر سوچ لے کیا کہہ دیتا ہے. اعلان ہویا کوئی کسے ہیرے تے کوئی کسے ہیرے تے. او لونڈی نے محمود غزنوی تے ہاتھ رکھ دیتا. دیکھ کے کہن لگے تو ایک ہی کیتے ہی. فرمایا تسی کیا سی جدے تے ہاتھ رکھے او دا. باقی ساریاں نے ہیریاں تے ہاتھ رکھیا میں ہیرے والے تے ہاتھ رکھیا. اس رب تے ہاتھ رکھ اس رسول تے ہاتھ رکھ پھر ساری کائنات او تیرے واسطے سونا بنا دے گا. تو اس دا بنتے صحیح تو اس دے واسطے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے آسمان بھی او دے واسطے نے زمینہ بھی او دے واسطے نے. اور آگے رب فرماندا ہے یورثھا من یشاء. میں جنوں چاہنا زمین آسمان دا وارث کر چھڈنا. میں جنوں چاہنا زمین آسمان دا ہیں. فرمایا او دے اگے تو مرتے صحیح او دے واسطے او دے اتے ہاتھ رکھتے صحیح. پھر اللہ جاندہ ہے مرن تو بعد بھی مرن لگا. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے. کامل ولیاں دے در تے آویخ اج بھی دیوے بلدے. حضرت عذر بہانہ چلنا نہ ہی جو آکھے سو کریے. عذر بہانہ او دی بارگاہ وچ کادا عذر ہے. حضرت تو دا بانتے صحیح اوے عذر بہانہ چلنا نہ ہی جو آکھے سو کریے. دیگر نو جو ڈھینا محمد جدو مرنا ہی ہے مرنا ہی ہے. حضرت نہیں رہنا کسے نے بھی کسے نہیں رہنا. لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا. شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا. اٹھ فریدا تیری داڑھی آیا بور. اوے وال چٹے ہو گئے. اٹھ فریدا تیری داڑھی آیا بور. اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور. اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. اللہ اکبر. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا تم جہاں بھی ہو اگرچہ بند قلعوں میں ہو موت وہاں بھی آ جائے گی. تو فرمایا اس لیے عذر بہانہ چلنا نہ ہی جو آکھے سو کریے. دیگر نو جو ڈھینا محمد کانو ایویں اس دے اگے اڑیے ایویں اڑدے پھر دے ہو. فرمایا او دے اگے جھک جاؤ اس واسطے کہ بڑے بڑے میں ڈھیندے ویکھے. اوے میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے میں ڈھیندے ویکھے تے زوراں ور ستھرانے. بیوقوفاں دے نوکر ویکھے تے دانش مند سیانے. بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. اس واسطے ڈھینا ساریاں نے ہے. لیکن حضرت اگر او دے ہو کے ڈھوو گے اللہ جاندہ ہے نہ دنیا وچ مٹو گے نہ آخرت وچ مٹو گے. تے آخری عادت 6 عادتاں میں تو انو اج دسیاں نے. 6 عادتاں انہاں 6 وچوں کوئی ایک تے اپنا لو. صبر شکر اللہ تے بھروسہ اللہ تے کامل یقین سچ بولنا تکبر جھوٹ نو چھڑنا اور نیکی نو چھپانا. انہاں چوں کوئی ایک اپنا لو زندگی ستھری ہو جائے گی. وآخر دعوانا